Hello friends, now our next practical, that is inorganic qualitative analysis. Remember, first practical is redox titration, which is already over. Now next session is inorganic qualitative analysis. Aim of the practical is to analyze the given salt, whatever the given, as a positive ion and negative ion you have to identify. That means what? Suppose this substance is given, and which positive ion and negative ion, or say which cation or say cation and anion is present, you have to find out. So what is meaning of first of all cation and anion? Remember that if this substance is dissolved in water and they dissociate in terms of ions, each ion is known as, we can say that, radical. First of all, remember definition of radical. Radical means what? Positive radical and negative radical is there. This question may be asked in your examination. So radical is that when substance, if it dissolved in water, we can say that it dissociates in terms of ions. Each ion is known as radical. That means positive radical and negative radical. Positive radical, X for example, Pb plus 2 ion, Cu plus 2 ion, NH4 plus ion, Na plus ion, K plus ion, many are there. Another negative ion means Cl minus, Br minus, SO4 minus 2, NO3 minus 1, maximum, many are there. Okay, so here, what you have to identify here? Aim of the practical is that this is an unknown substance. Which particular positive radical and negative radical present in it, we don't know. We have to find out positive radical and negative radical. Now remember here, pamphlet is available throughout examination. So from the pamphlet, you do not remember any word. You have to show from the pamphlet and certain techniques, and from that you have to identify which positive and negative radical is present. So here there are sections. That means first of all we carried out first one, that is as A. A means what? Preliminary test. Preliminary test in which particular tests are including? First is color. Just you see, do not remember this. This is according to your pamphlet. Okay, so just you see, this pamphlet is available throughout examination. आप ये पैम्पलेट का यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे देखिए, कलर ऑफ सॉल्ट. सेकेंड है स्मेल, यानी कि आपको स्मेल लेनी है. थर्ड है ड्राई टेस्ट ट्यूब, ड्राई टेस्ट, हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, दैट मीन्स ड्राई हीटिंग टेस्ट. फोर्थ है फ्लेम टेस्ट, एंड फिफ्थ है बोरेक्स बीट टेस्ट. बोरेक्स बीट टेस्ट इज नॉट इंक्लूडिंग बिकॉज इट्स कंटेनिंग सर्टेन कलर कंपाउंड. फ्लेम टेस्ट की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पहले जो 3 टेस्ट है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, कलर आपको दिखाई देता है. कलर कौन सा है? कलर देख लीजिए, कलर है व्हाइट, होगा तो भी कलरलेस है. सही है. यहाँ पे देखिए सब्सटेंस व्हाइट है, यानी कि कलरलेस. आपको कलरलेस लिखना है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैम्पलेट में प्रिलिमिनरी टेस्ट में फर्स्ट कलर ऑफ सॉल्ट्स कलरलेस लिखा है, यानी कि आपको ऑब्जर्वेशन में लिखना है कलरलेस. और इन्फ्रेंस में देख लीजिए, NH4 प्लस, K प्लस, Na प्लस, वी कैन से AS प्लस 3, Al प्लस 3, Zn प्लस 2, जो सारे केटाइन लिखे हैं और कैशाइन लिखे हैं वो आपको लिखने हैं. मे बी प्रेजेंट, यानी कि पहले क्या करते हो आप? टेस्ट करते हो, उसके बाद में क्या लेते हो? ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद में क्या लिखते हो? इन्फ्रेंस. ये आपको याद रखना पड़ेगा. सही है. तो आपको अंदर से लिखना है. यहाँ पे जो पैम्पलेट अवेलेबल है उसमें से लिखना है. तो यहाँ पे देख लीजिए, टेस्ट यानी कि कलर ऑफ सॉल्ट, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. पहला टेस्ट करेंगे. तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सब्सटेंस हमें दिया गया है. सब्सटेंस का कलर व्हाइट है, उसका मतलब कलरलेस है. तो कलरलेस होगा तो उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा? कलरलेस. और इन्फ्रेंस में क्या आएगा? जो लिखा है वही लिख दो. Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस, AS प्लस 3, दिस केटाइन मे बी प्रेजेंट. ओके, सो ये पहला टेस्ट हो गया हमारा. दूसरा टेस्ट है अडर. अडर लेने के लिए आप याद रखिएगा, कभी भी अडर ऐसे मत लीजिए, हाथ रखिए और उसका स्मेल लीजिए. सही है. तो आपको याद रखना पड़ेगा. तो अडर में क्या आएगा? तो मैं यहाँ बता देता हूँ, अडरलेस है, यानी कि स्मेल नहीं आएगी.
तो यहाँ पे स्मेल नहीं है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देख लीजिए, स्मेल ऑफ सॉल्ट, स्मेल ऑफ सॉल्ट। तो स्मेल ऑफ सॉल्ट में क्या है, पंजेंट स्मेल, स्मेल ऑफ रोटन एग्स आती नहीं है, स्मेल ऑफ वी कैन से विनेगर वो भी नहीं है, तो यहाँ पे नो स्मेल है, ये ऑप्शन सही है। तो नो स्मेल होगा तो SO3 -2 S -2 CH3 COO माइनस, दिस मे बी एब्सेंट, यहाँ पे एब्सेंट ही लिख दो, दे आर एब्सेंट। ओके, तो आपको ये लिखना है। तो दूसरा टेस्ट भी हो गया। अब तीसरा टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। जब ये टेस्ट करो तो आपकी टेस्ट ट्यूब क्या होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। तो टेस्ट ट्यूब यहाँ पे हमारे पास है, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसको आप इस तरह लगा दीजिए, टेस्ट ट्यूब अच्छी होनी चाहिए, यानी कि टेस्ट ट्यूब होल्डर में आनी चाहिए। अब आप देखिए किस तरह आपको हीट करना है। पहले ड्राई टेस्ट ट्यूब करते हैं, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, हमें ड्राई करनी पड़ेगी टेस्ट ट्यूब को। तो आपको इस तरीके से, डोंट रिपीट, यानी कि आपको इस तरह नहीं करना है, जस्ट इस तरीके से आपको ड्राई करनी है। ओके, अब मेरे ख्याल से अब तो ड्राई हो गई है। वाटर के ड्रॉप्स नहीं होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको ये सब्सटेंस लेना है। सब्सटेंस लेने के लिए छोटी सी आप इस तरीके से कागज से इस तरीके से लेना है, यानी कि सब्सटेंस को हमें लेना है। सब्सटेंस लिया, थोड़ा ज्यादा लेंगे। अब इसमें आपको देखना है क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं हीट कर रहा हूँ सब्सटेंस को, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करो, क्योंकि वहां पे आपका बॉटम साइड ब्लैक ना हो। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा आवाज भी आ रहा है, थोड़ा ज्यादा हीट करेंगे तो क्या होगा वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल दोनों देख सकते हो। मैं आपको हिंट नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, सारे प्रैक्टिकल खत्म हो जाएंगे, बाद में हिंट दूंगा कि किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल इसी टेस्ट में खत्म हो सकता है या कोई टेस्ट में खत्म हो सकता है। यहाँ पे देखिए सब्सटेंस को मैंने हीट किया, तो आप देख सकते हो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, जो व्हाइट सब्सटेंस है वो येलो हो गया। सही है, व्हाइट सब्सटेंस येलो हो गया, यानी कि पैम्पलेट में, आपके पैम्पलेट में जो दिया गया है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं आता तो आप कुछ भी मत लिखो। सही है, यहाँ पे देख लीजिए, सब्सटेंस को हीट करने से ये आता है। ओके, याद रखिएगा, कलर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। एक्चुअली मैं यहां से भी कह सकता हूं नेगेटिव आयन कौन सा प्रेजेंट्स है, लेकिन अभी नहीं, अभी आपको पॉजिटिव रेडिकल के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सब्सटेंस येलो हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़े होंगे लेड नाइट्रेट का। सही है, तो लेड नाइट्रेट जब आप हीट करते हो तो ऑक्सीजन रिलीज होने के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस येलो होता है। ओके, और जो ब्राउन गैस है वो क्या है वो बाद में बताऊंगा। सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव रेडिकल यहां से ही फाइंड आउट हो सकता है। तो ये सारे जो टेस्ट है इसमें से फ्लेम टेस्ट, तो ये देख लीजिए, ये टेस्ट भी यहाँ पे हमने पूर्ण कर दिया है। उसके बाद में हम देखेंगे आगे का टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको वॉच ग्लास लेना है। एक बार प्रोसीजर सुन लीजिएगा, वॉच ग्लास में सब्सटेंस लेना है, सब्सटेंस में आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl बहुत ही कम लेना है, तो आपको पेस्ट बनानी है। यू हैव टू प्रिपेयर वन पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, सॉलिड पार्ट्स ज्यादा होगा और लिक्विड यानी कि HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको कम लेना है।
और उस पेस्ट को आपको प्लेटिनम वायर में, जो प्लेटिनम वायर होता है उसको पहले हीट करने का, यानी कि पहले लूप बना दो, लूप बना के उसको हीट करो क्योंकि वहां पे कोई भी इंप्योरिटीज प्रेजेंस ना हो। उसके बाद में आपको जो पेस्ट बनाई उसमें डिप करो और उसके बाद में आपको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रखना है। तो वो कौन सी फ्लेम आएगी वो पता चलेगा, लेकिन इस प्रैक्टिकल में हम नहीं बताएंगे, वो अगले प्रैक्टिकल में बताएंगे। यहाँ कोई भी फ्लेम नहीं आ रही ऐसा मान लीजिए, यानी कि फ्लेम टेस्ट, यहाँ पे कोई भी कलर की फ्लेम नहीं आ रही। दूसरा टेस्ट है आगे का है बोरेक्स बीट टेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट पे आप यहाँ पे मत रखिएगा। उसके बाद में जो आता है बोरेक्स बीट टेस्ट के बाद में वो टेस्ट है बी, यानी कि अब हम जाएंगे टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव रेडिकल। अब तक हम पढ़ा कौन सा टॉपिक पढ़े, प्रिलिमिनरी टेस्ट। फिर से बता देता हूं, पहले आपको क्या करना है, सब्सटेंस को लेके देखना है कलर कौन सा है, कलर मिल गया, उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है पैम्पलेट में देख के, यानी कि आपका मटेरियल है उसमें से देख के ही आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको इन्फ्रेंस लिखना है, सही है। उसके बाद में स्मेल, स्मेल कौन सी आती है आपको पता चलेगा। स्मेल लेने के लिए हाथ को इस तरह रख के स्मेल लेनी है। स्मेल के बाद में जो स्मेल आती है वो ऑब्जर्वेशन में लिख दो, और इन्फ्रेंस में जो आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो पैम्पलेट में देख के लिख दो। उसके बाद में आएगा हीटिंग इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। मैंने कहा कि सब्सटेंस को कैसे हीट करना है, पहले टेस्ट ट्यूब को ड्राई करना है, मैंने बताया, ड्राई करने की प्रोसीजर भी बता दी। सब्सटेंस को लेना है और उसको हीट करना है, हीट करके आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है, और वो ऑब्जर्वेशन आपको पैम्पलेट में देख के जो मैच हो रहा है वही लिखो, सही है। तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव रेडिकल या कोई भी नेगेटिव रेडिकल मिलेगा। उसके बाद में हमने बताया फ्लेम टेस्ट, उसकी प्रोसीजर बताई, और उसके बाद में हमने बताया बोरेक्स बीट टेस्ट, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बोरेक्स बीट टेस्ट वो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा सब्सटेंस व्हाइट कलर्ड है, अगर कलर्ड होता तो बोरेक्स बीट टेस्ट करना पड़ता, इतना याद रखिएगा। तो ये हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट। ओके नाउ यहाँ पे हमें देख लीजिए आगे का सेशन है बी, यानी कि ए खत्म हो गया प्रिलिमिनरी टेस्ट। यहाँ पे बी है, इसका मतलब क्या है, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव आयंस, यानी कि जो सब्सटेंस दिया है उस सब्सटेंस को आपको किस रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना है वो यहाँ पे लिखा है। एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए पहला है सॉलिड सॉल्ट्स, यानी कि एक सॉल्ट आपको जो दिया गया है अननोन, उसको आप एक टेस्ट में लीजिए, उसके बाद में डाइल्यूट H2SO4 को डालिए, क्या रिएक्शन आता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ के क्या होता है वो हम देखेंगे। उसके बाद में है सॉलिड सॉल्ट्स प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, सही है। उसके बाद में आता है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस एक्सेस अमोनियम मोलिब्डेट, यहाँ पे फॉस्फेट होगा तो ये प्रेजेंट बताएगा। ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर SO4-2 होगा तो बताएगा। तो आपको क्या करना है, ये 4 टेस्ट करने हैं, तो आपको फिर से यहाँ पे बी लिखना है जर्नल में। उसके बाद में आपको टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव रेडिकल 3 कॉलम बना दीजिए, टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, इन्फ्रेंस। अब देखिए क्या आपको करना है। तो पहला है अंदर देख के ही आपको करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, अंदर देख के ही आपको जो भी है प्रोसीजर करनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहले जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में आपको H2SO4 लिखा है, बहुत ही केयरफुली। ओके, ये टेस्ट ट्यूब हो गई। अब उसके बाद में ये इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करना है। आपको पहले सब्सटेंस लेना है, उसके बाद में आपको डालना है डाइल्यूट H2SO4। मैंने सब्सटेंस ले लिया, उसके बाद में आपका टेबल रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हो गया, क्या आता है वही देखना है, कुछ नहीं आता तो कुछ नहीं लिखने का। यहाँ पे देखिए स्टरिंग करते हैं हम, डाइल्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए
थोड़ा हीट करेंगे, देखते हैं हीट करने से क्या होता है। कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आप उसको रख दीजिए, सही है। अगर ऐसे देखोगे तो भी कोई रिजल्ट नहीं है अभी, तो उसको निकाल दीजिए। कोई भी नहीं आता तो उसको लिख दीजिए नो एनी गैस इवॉल्व, सही है। और उसके बाद में आपको देखना है क्या हो रहा है। लेकिन फिर से एक बार, सब्सटेंस थोड़ा ज्यादा लेंगे, अगर कम हुआ तो इस टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअली आपको सिंक की तरफ रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे की तरफ उड़ेगा, आगे जो सॉल्यूशन है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो उसको मत लिखो, सही। बाद में उसको बाकी रखो, जो भी रिजल्ट आता है वो बाद में लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो हमने प्रैक्टिकल में किया था, याद करो, हीटिंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। रेडिश ब्राउन गैस हमें मिल रहा था, तो यहाँ पे देखिए ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस इज इवॉल्व्ड। ये एक ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था। जब हम हीटिंग इन ड्राई टेस्ट ट्यूब कर रहे थे तो वो ये आ रहा था, तो उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे तो आ ही जाएगा, तो सॉल्ट ऑफ आ जाएगा, यानी कि जो होगा तो ही आएगा, पर जो भी आयंस आएगा, प्रेजेंस होगा, वही आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉलिड सॉल्ट प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, यानी कि आपको फिर से सब्सटेंस लेना है। सब्सटेंस लिया हमने, उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर में रखते हैं और उसमें हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। इस तरीके से मत डालना, ये कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो हीटिंग इन ड्राई टेस्ट में मिला था, सही है। उसको हीट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है। यहाँ पे देखिए कौन सा गैस आ रहा है, देख लीजिए, रेडिश ब्राउन गैस है, कंप्लीटली दिख रहा है। इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको। तो जो रेडिश ब्राउन गैस वो निकल रहा है वो किसका है, NO2 गैस है, उसकी फ्यूम्स है। और उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे NO2 गैस इवॉल्व हो रहा है, और इसके हिसाब से हम कहेंगे NO3-1 आयन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, सही है। तो इस टेस्ट में मैंने बताया था, एक ही हिंट बताई थी, हीटिंग इन ड्राई टेस्ट में वही हमें एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा था। तो अगर आप याद रखोगे तो ये बहुत ही ईजी रहेगा। NO3-1 हमारा नेगेटिव रेडिकल आ गया, देख लीजिए आधा पार्टिकल यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेगेटिव रेडिकल NO3-1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि प्रेजेंट हो गया, लेकिन उसको कंफर्म करना पड़ेगा। इसके हिसाब से हमें क्या करना है, कंफर्मेटिव टेस्ट। अगर हमें ये मिल रहा है तो दूसरे टेस्ट में देखिए तो क्या होगा। अगर एक वन आयन आपको मिल गया तो दूसरा आयन तो प्रेजेंस नहीं होगा। आपको क्या करना है, दूसरे टेस्ट में थर्ड टेस्ट कर लीजिए,
उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन लीजिए, कांस्टेंट नाइट्रिक एसिड लीजिए और अमोनियम मोलिब्डेनम लीजिए। लेकिन हमारा NO3-1 यहाँ पे मिल गया है तो PO4-3 यहाँ पे एब्सेंट ही होगा। अगर आप टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो और उस टेस्ट में आपको फॉस्फेट क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। उसी हिसाब से ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस बेरियम नाइट्रेट और बेरियम क्लोराइड उसको लेते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा तो कहेंगे कि SO4-2 है। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं आता तो उसका मतलब ये है कि ये भी एब्सेंट हो गया। तो आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने बताया कि नेगेटिव आयंस में ही आप कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको कंफर्म करना है कि वेदर NO3-1 इज प्रेजेंट और नॉट। कंप्लीटली क्लियर? तो आपको ये फिर से मैं बता देता हूं, सॉलिड सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4 आपने लिया, उसमें ये आना चाहिए ब्राउन फ्यूम्स, लेकिन नहीं आता तो आप मत लिखिए अभी, लेकिन इसमें आ जाएगा सॉलिड सॉल्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 गैस लिखा है, सही है? तो NO3-1 में भी प्रेजेंट, हमारा नेगेटिव रेडिकल यहाँ पे आ गया। और आप जानते हो इनऑर्गेनिक सॉल्ट में यहाँ पे एक ही सॉल्ट है, यानी कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा, फॉस्फेट प्रेजेंस नहीं होगा, सही है? और SO4-2 भी प्रेजेंस नहीं होगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर नेगेटिव आयंस। ट्राई टेस्ट फॉर नेगेटिव रेडिकल हमने बी सेक्शन में खत्म किया। अब आगे कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव आयंस, ये याद रखिएगा। कंफर्मेटिव उसका मतलब क्या होता है, NO3-1 हमने निकाल लिया, NO3-1 रेडिकल प्रेजेंट है ट्राई टेस्ट के हिसाब से, तो आपको वो कंफर्म करना है वेदर प्रेजेंट और नॉट, तो उसको क्या कहेंगे, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव आयंस। यहाँ पे देखिए कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर नेगेटिव आयंस लिखा है, तो यहाँ पे देखिए कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर NO3-1 भी लिखा है। दो ही टेस्ट है, आपको दो टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, और अगर पॉजिटिव आ गया तो उसका मतलब ये है कि NO3-1 प्रेजेंट हो जाएगा। तो पहला टेस्ट हम करेंगे सब्सटेंस प्लस कॉपर फॉइल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको अंदर देख के ही सारे टेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब फोल्डर में लगा लिया है। अब मैं सब्सटेंस लेता हूं, इस सब्सटेंस को हम कॉपर फॉइल डालेंगे। कॉपर की जो फॉइल है ये, इससे कहेंगे कॉपर फॉइल। साइड के जो रिएजेंट है साइड वहां पे मिल जाएगी, तो कॉपर फॉइल हम डाल रहे हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप डालते हो तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ड्रॉपर से आप डालिएगा। हो गया, ये देखिए। अब आपको हीट करना है। यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट भी आ रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है, हीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड SO4 है। देखिए कलर कौन सा आ रहा है, इससे पता चल जाएगा। उसके बाद में थोड़ा हीट करते हैं। यहाँ पे हीट करने को लिखा है तो हीट करेंगे, जो लिखा है वो करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो भी ऑब्जर्वेशन है आपको पता चल जाएगा। इस ट्यूब को स्टैंड रखो और सावधानी बरतो। यहाँ पे आप हीट कर रहे हो। यहाँ पे देखिए कलर आ रहा है ब्राउन गैस, NO2 गैस निकल रहा है, सही है? उसका मतलब ये हो कि NO3-1 यहाँ पे कंफर्म हो गया, तो हमारा पहला टेस्ट सक्सेस हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्राउन कलर गैस इवॉल्व एंड द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स, वो जो होगा वो देखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ब्राउन गैस हो गया है, तो ये टेस्ट हो गया। इसके बाद में आगे का टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, रिंग टेस्ट। उसके थियरी पार्ट आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब उसको परफॉर्म करने के लिए पहले आपको टेस्ट ट्यूब ड्राई करनी पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली ड्राई करो। ये डिस्टिल वाटर है मेरा, जो यहाँ पे है डिस्टिल वाटर है, मैं डिस्टिल वाटर ले लेता हूँ। क्या करना है इसमें, प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बढ़िया रिजल्ट भी देगा। आपको लेना है अननोन सब्सटेंस, इसमें आपको डालना है डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि वाटर डाल दो, इसको सोल्यूबल कर दो। ये हो गया सोल्यूबल। स्टरिंग कर देना इस तरीके से। स्टरिंग इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन हो गया। किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या कोई भी HCl, HCl किसी में भी डिसॉल्व करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये हमारा सब्सटेंस है, वाटर में डिसॉल्व है, आगे ये काम लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए वाटर में डिसॉल्व हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा देगा। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब होल्डर में आपको अब आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। क्या करोगे आप, टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाने के लिए सॉलिड सब्सटेंस का FeSO4 जो रखा है वो ले लो, उसमें डिस्टिल वाटर डाल दो। सब्सटेंस ज्यादा वाटर कम, उसका मतलब क्या होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड FeSO4 फेरस सल्फेट। अब उसको मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, सही है। अब आपको यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी। H2SO4 को आप पिपेट के माध्यम से यहाँ पे आप स्लोली जो बॉर्डर है वहां से डालना है और उसको स्टेबल रखना है, हिलाना नहीं है। हिलाओगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नहीं आएगा। यहां पे देखिए मैं नजदीक ला रहा हूं, स्टेबल रखना पड़ेगा वरना ये रिंग दिख रही है आपको, रिंग है कि नहीं, ये रिंग है, देखो ब्राउन रिंग इज प्रेजेंट। सही है, ब्राउन रिंग दिखाई दे रही है। थोड़ा H2SO4 ज्यादा डालेंगे लेकिन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के हिसाब से यहाँ पे आपको ब्राउन रिंग दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे अनस्टेबल हो गया, यानी कि मैंने हिला दिया तो रिंग ब्रेक हो गई। आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे रिंग ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मैं बता देता हूं, ये पहला प्रैक्टिकल में भी ऐसा हुआ था यहाँ पे। ओके, ये ब्राउन रिंग यहाँ पे आती है, कंप्लीटली क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्राउन रिंग आनी चाहिए, 101% आएगी ही, सही। तो आपको यह रखना है यहाँ पे ब्राउन कलर रिंग इज ऑब्जर्व, आपको दिखी होगी, तो उसको आप कह सकते हो NO3-1 में बी प्रेजेंट, यानी कि यहाँ पे कंफर्म ही हो गया। NO3-1 हमारा एक रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल कंफर्म हो गया। तो फिर से एक बार, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आपको लेना है डाइल्यूट H2SO4, कौन सा H2SO4 ले लो, और उसको आपको बॉटम यानी कि जो बॉर्डर है, टेस्ट ट्यूब की जो बॉर्डर है वहां से आपको धीरे से डालना है, सही। और वहां पे आपको क्या करना है, जो मिलेगी, कौन सी रिंग मिलेगी, ब्राउन रिंग। तो ये ऑब्जर्वेशन है
और इन्फ्लुएंस में आएगा NO3 माइनस 1 इज कन्फर्म। ओके, सो कन्फर्मेटिव टेस्ट के हिसाब से NO3 माइनस 1 हमारा एक रेडिकल कन्फर्म हो गया। ओके, नाउ सी टेस्ट इज ग्रुप टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। देख लीजिए, ये अभी पैम्पलेट अवेलेबल है, मैंने बताया था अभी, आपको पैम्पलेट में देख के ही करना है। तो आपको पहले क्या सोचना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये सब्सटेंस जो दिया गया है, जो भी सॉल्ट है वो वाटर सॉल्युबल है, HCl में है, कॉन्स्टेंट HCl में है, वो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने सब्सटेंस को वाटर में डिसोल्व किया तो ये डिसोल्व हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन। अगर वाटर में डिसोल्व नहीं होता तो उसको डाइल्यूट HCl में डिसोल्व कीजिए, अगर डाइल्यूट HCl में डिसोल्व नहीं होता तो उसको कॉन्स्टेंट HCl में डिसोल्व कीजिए। बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सब्सटेंस प्लस वाटर सॉल्युबल, और वो आपका बनेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन, उसको शॉर्ट में हम कहेंगे OS। अब मैं OS बोलूं उसका मतलब क्या होगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट है, जो पहला है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ लिखा है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर ये टेस्ट आ गया तो आपका जीरो ग्रुप, उसको क्या कहेंगे, जीरो ग्रुप प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट हुआ तो आपको क्या करना है, पहले एक टेस्ट ट्यूब क्लीन करके लेनी है, और वो टेस्ट ट्यूब आपको मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन है, सब्सटेंस प्लस वाटर। अब इसमें मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन ले रहा हूं। इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने डाला था ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl था, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं। अब मैं जीरो ग्रुप चेक कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर से बता देता हूँ, जो मैंने सॉल्यूशन लिया था वो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl था, तो उसमें मुझे व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, लेड क्लोराइड के मिलते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन पहला जीरो ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं वो बता देता हूँ। तो वो देखने के लिए आपको पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना है, और उस ओरिजिनल सॉल्यूशन को लेने से पहले आपको टेस्ट ट्यूब क्लीन करनी पड़ेगी। अब मैं ओरिजिनल सॉल्यूशन लेता हूं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लेता हूं। देखिए यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं आ रहा, उसका मतलब क्या हुआ, जीरो ग्रुप एब्सेंट। फिर से बता देता हूँ, ओरिजिनल सॉल्यूशन आपकी जो बुक में लिखा है वो ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस NaOH, यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में NH डालना है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिलता, देखिए क्लियर सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ जीरो ग्रुप एब्सेंट। दूसरा टेस्ट मैंने बताया ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस जो मैंने किया था वो डाइल्यूट HCl। अब वो करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, तो ये हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है। अब इसमें हम HCl जो है आपका टेबल रिएजेंट है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाइल्यूट HCl। देखिए बहुत सारे प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, देखिए बॉटम साइड पे देखिए, सही है। तो आपका फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट आ गया। अब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट आ गया तो सेकंड ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको स्टॉप करना है। फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ग्रुप का कंफर्मेटिव टेस्ट हमें करना है। अब और क्या होगा, सेपरेशन करना है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे देखिए
ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, यहाँ पे लिखा है वाइट प्रेसिपिटेट ऑक्टेन, तो हमें मिलेगा फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट, तो Pb+2 प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे एक ही है, तो आपको कंफर्म करना है कि प्रेजेंट है कि नहीं। एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ग्रुप फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो यहाँ पे ओरिजिनल सॉल्यूशन यानी कि जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसमें आप NaOH डालोगे तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, उसका मतलब क्या होता है, जीरो ग्रुप इज एब्सेंट। उसके बाद में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, वाइट प्रेसिपिटेट आ गया, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप इज प्रेजेंट। अब आपको क्या करना है, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर फर्स्ट ग्रुप यानी कि Pb+2 के कंफर्मेटिव टेस्ट करने हैं। ओके, नाउ कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Pb+2, तो यहाँ पे हम दो कंफर्मेटिव टेस्ट है। कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर Pb+2 में ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस K2CrO4, ये मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया। अब देखिए ये पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 हो गया। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिलेंगे कि नहीं, तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, ये सारे प्रेसिपिटेट बॉटम साइड पे, जो बॉटम साइड पे कलेक्ट हो जाएंगे, सही है, उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। आप जानते हो मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, एकदम नजदीक से बता देता हूँ। ये सारे देखिए सॉलिड पार्ट्स है कि नहीं, और कलर कौन सा है, येलो कलर, क्लियर दिखाई देता है। अगर आपको दिखाई नहीं देता तो वॉश बेसिन में आप डालिए, कौन सा कलर आता है वो भी देख लीजिए। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता तो इस तरीके से देखिए, तो येलो ही दिखाई देता है। कभी कभी वाइट भी दिखाई देगा, तो आपको ये सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन सा कलर है, तो येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑब्टेन। देयरफॉर वी कैन से दैट Pb+2 इज कंफर्म। तो उसका रिएक्शन सामने दिया गया है, वो आपको अंदर देख के ही लिखना है, सही है। तो आपको नेगेटिव रेडिकल में भी, नेगेटिव आयंस के कंफर्मेटिव टेस्ट में भी रिएक्शन दिया गया है, तो आपको वही लिखना है, जो अंदर है वही लिखना है, लेकिन टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और दूसरा रिएक्शन यानी कि दूसरा टेस्ट है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ये ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, और पोटेशियम आयोडाइड साइड रिएजेंट है, साइड में मिलेगा, तो आपको डालना है। देख लीजिए यहाँ भी वही सिचुएशन है, येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑब्टेन, सही है। देख लीजिए सॉलिड पार्ट्स लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, तो आपको याद रखना है, और उसमें लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट मिलेंगे येलो कलर के, सही। तो आपको इक्वेशंस भी अंदर देख के लिखना है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अंदर देख के पैम्फलेट में से ही पूरा करना है। तो अब रिजल्ट में क्या आएगा, इन दिस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पॉजिटिव रेडिकल Pb+2 which is known as lead ion, negative radical NO3-1 which is known as nitrate ion, nitrate of, remember, and name of compound is lead nitrate and formula of compound is PbNO3 twice। तो इस तरीके से सारा प्रैक्टिकल जो होता है यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि जो प्रैक्टिकल की प्रोसीजर है वो हमने केटायन और एनायन के हिसाब से, केटायन है और केशायन है वो कौन सा है, Pb+2, और एनायन है वो NO3-1 है। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का पूरा एनालिसिस यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद में मैं ये कहूँगा कि टेबल डिवीजन को आप याद रखने की टेक्निक्स भी सोच लीजिएगा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था, लेकिन फिर से एक बार याद रखने की टेक्निक आपको देखनी पड़ेगी। जो टेबल रिएजेंट है उसमें HCl पहले आएगा, जो सीक्वेंस है वो याद रखना, और दूसरा साइड रिएजेंट कौन सा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाइट कलर का यहाँ पे दिया गया था, उसमें हमने निकाल दिया कि पॉजिटिव आयन क्या है और फिर पॉजिटिव रेडिकल क्या है Pb+2, और नेगेटिव रेडिकल क्या है NO3-1। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, PbNO3 ट्वाइस, और उसका नेम क्या होगा, लेड नाइट्रेट। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।